माइंड को सेट करना पड़ता है एक डायरेक्शन में जाने के लिए, वो कितना डिफिकल्ट है। You've seen Dangal? The Mahavir scene forgot. That was my Guru Kiran Dadi. Yeah, bodybuilders and us, we are little mad people. यू मेंशन वर्ड कार्व्ड, वो जो जिम है उसकी फिलोसॉफी क्या है? The thought of carved on day one was to build a community. The first time I met John Abraham, the most beautiful body I've seen in that particular time. Fitness, लोग बोर हो जाते हैं, मोटिवेशन चले जाते हैं. Reason being it's a slow process. If it was that easy भाई, तो वैसा बॉडी लेके हर आदमी तुमको बादशाह रास्ते पे दिखता है ना. मैं ये समझा गलत भी हो सकता है। भाई मुझे आप नहीं पसंद तो मुझसे बात मत करो. You'll never see my lifestyle or you'll never see my cars, you'll never see me blowing money because I don't anyways. I'm very simple that way. I am an avid foodie. I love food and there's no particular cuisine I like but I'm a foodie. Yeah, it was a childhood dream that I wanted. I always wanted a cafe or a restaurant of my own. I was consistent for 15 years. I never missed my workout. I went completely off track. I want to get my body back. I feel it already, man. If you're weak, die. If you're not weak, तो भाई लड़ना ही पड़ेगा. हे हाय हेलो व्हाट्सअप कसकाई केम छो नमस्ते, माय नेम इज़ प्रियांक देसाई और आज हमारे सामने जो गेस्ट बैठे है उस गेस्ट से मैं पूछने वाला हूँ कुछ ऐसे सवाल जो मेरी लाइफ की पूरी जर्नी में मुझे हर जगह से सुनने मिले। जैसे कि लाइफ में अगर हैप्पी होना हो तो आपको फिटनेस चाहिए, हेल्दी होना हो तो आपको अच्छा माइंडसेट चाहिए, आपको सक्सेसफुल होना हो तो मटेरियलिस्टिक थिंग्स चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर किसी को प्लेट में सामने से मिल जाए तो उसके बाद की जर्नी कैसी होगी वो मुझे किसी ने बताया नहीं, किसी ने सिखाया नहीं। तो आई विल ट्राई टू डिकोड हिम इन अ वे जिससे माहौल थोड़ा एंटरटेनिंग रहे और हमारे सामने एक फ्लैम्बियंट एंटरटेनिंग एपिसोड आपको मिलता रहे। सो आई एम प्राउडली प्रेजेंटिंग यू नन अदर देन मिस्टर देव देसाई। Hi guys. So happy to be on the podcast. इवन आई एम हैप्पी टू हैव यू हियर ऑन द पॉडकास्ट। सो मेरा सबसे पहला इजी और आसान क्वेश्चन यही है कि कैसा लगता है कि इतनी बड़ी फैमिली में सबसे छोटे हाइटेड पर्सन होना? So people who haven't seen me, I'm 6'2", and yeah, I'm one of the shortest in the families because I think आप हमारी जो पहले बात हुई कि आप भी the caste that we belong to is Brahm Kshatriyas. It's a very small caste. आप भी वही हो. So that defines our build. We are tall, broad people. So I'm 6'2", around 100 kilos. Camera पे दिखता नहीं इतना बड़ा, but yeah, I'm a big guy. And one of the shortest, my dad is 6'6". My family is of tall people from my father's side of the family mostly. But yeah, genetically we're big people. So I feel a little odd when I'm around my family most of the times because I'm one of the shortest. सो इसको मैं ऐसे समझूं कि लाइक आप जहाँ पे खड़े होते हो यू कैन हैव अ लॉन्ग विजन, लॉन्ग व्यू। My viewpoint is very different than other people. सो दिस इज योर वे। तो आपके व्यू पे जाते हैं तो मुझे पहले एक छोटा सा वर्जन ये समझना है कि वो जो सक्सेस की आपकी जर्नी थे उस पर हम बाद में आएंगे, लेकिन एक बार सक्सेस अचीव हो गई उसके बाद की जर्नी समझनी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आपके लिए सक्सेस की डेफिनेशन क्या है? For me, success is number one, proving something to myself in something that I do. हम्म। That is one of the biggest definition of success. Second is money. I won't be humble and I won't be fake here saying, it's all about happiness. Happiness is a choice. A person can be happy with 100 rupees also, and a person won't be happy with 100 crores also. So success comes with money for me. If you're doing something and if you're good at it and you're proving it right and people are liking it, that's success for me. Respect. Primary factor is respect. I might have not made a lot of money in my life compared to the work I've done, but I've earned good respect. So that is success. सो व्हेन यू से रिस्पेक्ट, तो आप हमारा जब डिस्कशन हुआ था तो यू सेड यू बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून, लाइक फैमिली के वेल टू डू बैकग्राउंड था और आपको लाइफ में कोई स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं थी। स्टिल यू चूज द हार्डेस्ट डिसिप्लिन दैट इज़ फिटनेस। लोग फिट हो सकते हैं लेकिन लोग फिटनेस कंपटीशन नहीं जीत सकते। और कंसिडरिंग योर बैकग्राउंड, आपने वो हार्ड पाथ चूज किया, तो व्हाट वाज द साइकी, क्या माइंडसेट था? To be very honest, I would not put it that way. Ke bhai, coming from a family where everybody, yeah, I'm well off. My father has given me a beautiful life. I've got an older brother who's taken care of me like a kid, given me everything that I wanted. I pick up things and I get it. I get it. Okay, but doesn't mean I haven't had my struggles in life. Struggles with emotions, struggles with career. Academically, I was never top notch because I was never into it. Been a sportsman all my life, played numerous sports, played a few sports state level, fared very well in sports.
But I chose fitness. The thing with me is I get bored. Bored with things that I do. मतलब अगर मैं एक स्पोर्ट भी खेल रहा हूँ तो आई विल अचीव अ पर्टिकुलर स्टैचर और पर्टिकुलर लेवल, फिर वो इंटरेस्ट निकल जाता है कि हाँ अब हो गया, इससे आदत है, ठीक है अब कुछ और पकड़ो. सो वो एक अच्छी आदत बोलो बुरी बोलो, बट वो करते करते आई चेंज अ लॉट ऑफ स्पोर्ट्स इन माई लाइफ. ग्राउंड से जीरो से सीखा. एंड आई ऑलवेज हैड दैट कीड़ा इन मी कि सीखना है तो मतलब पूरा पता होना चाहिए गेम क्या है. चाहे स्पोर्ट हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे लाइफ हो. I will never talk about something that I don't understand. Just for instance, a lot of my friends abroad deal in crypto. So जब मुझसे बात ये stocks in India, I don't understand stocks क्योंकि मैंने interest ही नहीं दिया है कभी. I don't understand crypto. I understand saving in gold, silver, yeah, because I follow the market. But apart from that, crypto समझ ही नहीं आता है मुझे. I'm sure it is not that difficult, but maybe I have not put that interest. तो I would not comment about it. आप मुझे पूछोगे कि what's your take on Bitcoin, पता नहीं भाई, मतलब जो होगा भी अपना. अच्छा ही होगा अपना, अपने को नहीं पता है. So I'm of that thought. So yeah, that's about it. But if I can ask you about Fitcoin then? Bitcoin is a currency that is very expensive. Number one. Secondly, it does not just involve your investment and money, but time, energy, your soul, your sweat, and it's a consistent job, man. You might get returns after a few time, but those returns are going to be promising all your life till you die. Best, I can't put it any more nicer than this. तो मैं ऐसा समझूं कि अगर मुझे फिटकॉइन हासिल करना है, लाइक वो आई एम फैट बॉय, लाइक मैं बचपन से मोटा था, फैमिली में भी सब हेल्दी है, मुझे वो विजन अचीव करना है, लेकिन कभी कभी वो रेजिस्टेंस आ जाता है. तो वैसा रेजिस्टेंस अगर मुझे ब्रेक करना है, इफ आई वांट टू अचीव दैट फिटकॉइन, तो क्या करना चाहिए? Let me start with what you said. बचपन से मोटे थे. आप कितने साल के हो अभी? करंटली 30 ईयर्स. 30 years. बचपन निकला 15 साल तो हो गए भाई. 15 साल क्या किया? फिटनेस किया, लाइक वो जर्नी ग्रोथ मिला. सो मैंने लगभग 3 महीनों में 18 केजी वेट कम किया था जस्ट बाय रनिंग. That's a wrong way to do हाँ, it. दैट Sorry. वाज अ रॉन्ग वे टू डू. जब वो समझ में आया तो मैंने वो छोड़ दिया, फिर वापस जहाँ से शुरू किया जैसे थे वैसे आ गया. So again, as I said, consistency is the key. सबके बॉडी में एक अप एंड डाउन होता है. I've also gone through up and down as I started training again because I was in a different phase. I was working, I was developing myself. I opened up a few businesses of my own in the last 1.5 year. So I couldn't prioritize my body. But the point is 15 साल से मैं अभी भी बॉडी बना ही रहा हूँ. आपको अगर आप मुझे सामने देख रहे हो, यू कह रहे हैं इतना अच्छा बॉडी है यार, आई वांट टू लुक लाइक दिस, बट as per me, I'm nowhere close to how I should be. So वो एक consistent game है, and it's a lifestyle. It's not something के 3 महीने किया उसके बाद normal life पे आ गए. अब an athlete's life can never be normal. So I also love to eat. I love to party. I love to indulge into trips, different food. I own a cafe, so I'm a foodie. Number one. I am an avid foodie. I love food, and there's no particular cuisine I like, but I'm a foodie. I eat every kind of food. So challenge वही है कि when I see other people eating a pizza every day, and I've been there, I've done that. In the last whole year, I've eaten, I partied. But now when I look at myself, when I see myself in the mirror, I'm not happy the way I look. I put on fat, my stomach is out, my abs are gone. So I tell it to myself कि भाई, I am not normal. I am not a normal individual like all the other people I see. मेरे कंधे पे वो बोझ भी है कि आई हैव टू लुक अ सर्टन वे. अगर कोई इंसान पहले से ही आउट ऑफ शेप है तो कोई उसको देख के बोलेगा नहीं कि ज़्यादा बढ़ गया है. लेकिन अगर मेरे को कोई देख रहा है और पेट हल्का सा देखो क्या हुआ, वाई वी पुट ऑन वेट, एज इफ वी आर नॉट ह्यूमंस, एज इफ वी आर डिजाइन वी आर स्कल्प्टेड बाय गॉड, वी आर कार्व्ड बाय गॉड, दैट वी लुक लाइक दिस ओनली. नो, वी आर ऑल्सो ह्यूमंस. वी ऑल्सो इंडल्ज इन टू फूड. सो एक कंसिस्टेंसी, एक लाइफ स्टाइल है. एंड आई पर्टिकुलरली बिलीव व्हेन यू सी योर बेस्ट, there's no way that you go back. So अगर आप भी एक journey start कर रहे हो, you do it the right way. You know, lately I'm bringing it to the notice. I consider myself the guy of fitness field from the base. I would call myself a trainer because I've done certifications, I know the game. But a trainer cannot be your nutritionist. I've seen a lot of gyms practicing this. Randomly they give diet plans. Trainers cannot give diet plans.
They are not certified, they are not educated enough to do it. Right? Where we come in play. एंड इफ यू रियली वांट टू डू इट द राइट वे, अगर आपने मेरे को बोला कि 3 महीने में 18 किलो दौड़ के कम किया, वो बिल्कुल गलत है. 3 महीने में सिर्फ आपने मसल ही जलाया है, फैट नहीं जला है. बिकॉज फैट लॉस हैपन्स व्हेन यू हैव इनफ अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड यू वेट ट्रेन एंड यू मिक्स कार्डियो विथ इट. इट्स अ मिक्स एंड मैच ऑफ एक्सरसाइजेस एज वेल एज एप्ट विथ योर फूड. इफ यू आर नॉट एप्ट तो कोई मतलब ही नहीं है. जो 18 किलो कम किया वो तो वेस्ट ही था, वो करना ही नहीं चाहिए था, मैं तो बोलता हूँ. So वो सारे aspects काफ़ी technical that we'll talk during this podcast, but yeah, so your start should be, man, just start day one and never stop. Make it your lifestyle. Make it a part of your life. कि दिन का 1 घंटा वो फिक्स है, मतलब या कि ट्रेनिंग करना और खाना तो बस यही खाना है. And I think, yeah, सो यू मेंशन वर्ड कार्व्ड. तो वो जो जिम है उसकी फिलोसॉफी क्या है, लाइक हाउ इट इज फंक्शनिंग ऑन अ डेली बेसिस? so Car's philosophy or the thought behind it. So I started my career, I used to own another gym. I wouldn't want to name that. Things went south with my partner. That's why I had to open up Carved. The thought of Carved on day one was to build a community. Simple. Community of like-minded fit people. And motivate them on the right way or right path. Because लोगों के पास क्या है, गूगल. अब गूगल है. When I started my career, there was no Google. गूगल तो था बट इतना नॉलेज नहीं था भाई. और हमको नहीं पता था कि हम गूगल पे क्या टाइप करके ढूंढे. सो अब कैसा है कि देयर इज नॉलेज, पीपल आर टेकिंग डाइट्स फ्रॉम एआई. अब एआई अगर तुमको डाइट, तो हम लोग कर ही क्या रहे हैं. एआई कैन नॉट टेक ऑल्सो. द गुड पार्ट अबाउट फिटनेस इज एआई इज नेवर गोइंग टू टेक ओवर इट बिकॉज इट्स पर्सनलाइज्ड. It can never be a generalized plan. And because fitness is something which is customized, like I can, like your diet is not going to be as same as mine or somebody else's, or your plan is not going to be the same because we all have different bodies, we have different anatomy, we have different body types, our body functions in different way. I'm assuming you are a vegetarian. यस. I'm not. So मैं जो खा रहा हूँ आप नहीं खा सकते. जो आप खा रहे हो वो खाना शायद मैं एब्जॉर्ब नहीं कर सकता. So there are a lot of factors. Again, your diet depends on your blood group. There are a lot of technicalities. If I take a diet plan and I make a diet plan, it's going to take me 1 hour to make it. वो 5 मिनट वाला काम नहीं है. ट्रेनर है तो वही का वही, इतने बॉइल्ड एग खाओ, इतना पनीर खाओ, इतना वेजीज. तुम बॉडी बिल्डर थोड़ी हो भाई. You're not a bodybuilder. You can eat home food. You just have to make sure you have enough protein sources in your diet. Doesn't mean you have to eat 20 eggs like bodybuilders do. I'm a bodybuilder. I eat like one. Doesn't mean you have to eat like one. बट आपने अभी मेंशन किया कि लाइक देयर इज अ ब्लड ग्रुप रीजन जी. विद अ डाइट. जी. थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? So depends on the body type. Blood group defines a lot of things about your absorption with certain foods. Like for example, my blood group is B positive. My body tends to absorb more of fish, eggs, more over chicken, not a lot of fibrous meat. Red meat, my body is not good at absorption. Certain blood groups होते हैं जैसे A positive है, works good with red meat. आई एम ओ पॉजिटिव. O positive again works good with red meat and fish. So if I start my diet on fish and eggs, my body changes, my skin changes, my texture, my skin texture changes very drastically. It starts shining because of so much omegas in it. So it has a relatability of absorption through blood group. Okay? So this is a very detailed game that we've learned, the nutrition that I've studied. कि जिसके अंदर वी आर ट्राइंग टू गो एक्सट्रीमली एप्ट विथ व्हाट इज गुड फॉर योर बॉडी. राइट. नाउ आई एम नो गॉड, आई एम नो डॉक्टर, और मे बी आई एम नॉट योर फादर दैट आई नो कि भाई आपको इस चीज़ की एलर्जी है, ये है, या मे बी इसका एब्जॉर्प्शन कम होता है. माई बॉडी इज नॉट गुड एट एब्जॉर्बिंग रेड मीट एज आई सेड. तो इट इज समथिंग दैट आई नो बिकॉज ऑफ सो मेनी ईयर्स. डेयरी आई कांट डू. आई हैव बीन ऑफ डेयरी सिंस मोर देन 15 years नाउ. इफ आई डू डेयरी माई गट गोज फॉर अ टॉस. सो ये सारी चीज़ें टेक्निकलिटी है, ये समझनी है. मुझे ऐसा लगता है कि आई एम लैक्टोस इंटॉलरेंट. तो क्या एम आई राइट? क्योंकि मैं जब भी मिल्क या कॉफ़ी कंज्यूम करता हूँ ना, माय डाइजेशन गोज टू हेल, लाइक बहुत गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है. सो नंबर वन, आपने दूध लाइक पैदा हुए तब से आपने पिया है ना, राइट. तब कोई इश्यू था नहीं. नहीं नहीं. राइट. डेयरी प्रोडक्ट्स आप ले रहे हो, यू नेवर टर्न लैक्टोस इंटॉलरेंट. इट्स समथिंग कॉल्ड लैक्टोस सेंसिटिविटी दैट यू डेवलप विद एज एंड लेस कंजम्पशन ऑफ मिल्क. राइट. लैक्टोस इंटॉलरेंट वो आदमी होता है जो पैदाइशी होता है. Somebody who's born intolerant is intolerant. राइट. Like, luckily, Indians are not lactose intolerant or intolerant to nuts, grains, any of that.
The reason being कि we are born eating it. Global food is different. अभी gluten free सबको जाना है. It's healthy. I am a supporter of it. But अपने gluten free जाए उसके अंदर कोई ज़्यादा सेंस नहीं बनता. जाओ तो अच्छा ही है. I am a complete supporter of consuming more of बाजरा जवार क्योंकि I myself do that. मैं बाजरा ही खाता हूँ. But white people they don't have गेहूँ. So उनको आदत ही है पहले से कि भाई वो ग्लूटेन से इंटॉलरेंट है तो वो ज़्यादा खा नहीं सकते. राइट. A lot of kids nowadays are born intolerant to gluten, intolerant to milk, dairy basically. But with certain people aged above and when they start feeling discomfort with their gut eating certain food, they get sensitive to certain food. You don't, and maybe if you do an allergy test, you might be allergic to so many things that you're consuming. जो अपने को पता भी नहीं है. सो कैसे करते हैं ये एलर्जी टेस्ट? It's just a blood test that they take and कोई भी पैथोलॉजी लैब में हो एनी गुड पैथोलॉजी लैब दे डू इट एंड उसका एक सर्टन टेस्ट होता है विच डिफाइंस कि आपको किस चीज़ की एलर्जी है. इसके अंदर सर्टन फ्रूट्स आ गए, मीट्स आ गए, वेजिटेबल्स आ गए, सब आ गया. सो दैट यू कम टू नो अबाउट थिंग्स. जिससे फिर हम उस पर कंट्रोल कर सकते हैं चीज़ों को. Control or avoid because they're like my father, he got his. I've never got it done because I know कि आएगी उसमें बहुत and I'm fine with it. But because my food is very basic. But my dad got it done. He was allergic to tomatoes. Tomato is something which is like a regular thing in Indian household. Some people are allergic to onions. Onion is something. Potatoes are something which is a very regular thing in Indian household. राइट. So you might even not know, but आप शायद allergic हो सकते हो. राइट. So that is something which defines if you do an allergy test. बहुत चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाती है आपकी. तो लाइक अगर कोई फिटनेस के बैकग्राउंड में जा रहा है तो वो ये सब प्रोसेस से जाता है या इट इज अ जेनरिक पर्सन टू पर्सन काइंड See, ऑफ? the thing with fitness is what I personally feel a lot of people have knowledge और जिनके पास है ना वो अपना काम करते हैं. I consider myself one of those. I have my you know, stack of supplements that I take. I have my therapies that I do. Massages, let's say IV therapies, steam sauna. So जो नॉर्मल जिम गोवर है या नॉर्मल इंसान है फिटनेस का उनको इतना एक्सपोजर नहीं है कि क्या क्या चीज़ है और दूसरा इट इज़ ऑल एक्सपेंसिव. सो एन एथलीट वुड नो व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट और बॉडी बिल्डर वुड नो क्योंकि वो लोग काम ही इसलिए करते हैं कि पैसा कमा के बॉडी पे डाल पाए. So they are the ones who go through these processes. Like blood test, I get my reports done every 3 to 4 months on an average because there's a tentative chance of fluctuation in that period if at all you are not on a good plan, if you're not doing a proper diet, if you're traveling, partying, you know. So a lot of factors matter. So I like to monitor it. I would ask my clients to monitor, but prioritize कोई नहीं करता यार क्योंकि आप you understand in a way देखने जाओ तो कुछ भी नहीं है. Like my blood test would cost somewhere around 5,000, 6,000 bucks, a total body profile, right? But people का इतना महंगा कहाँ कराना है? वो महंगा नहीं है यार मतलब. लाइफ के सामने कुछ नहीं है. But prioritize कौन कर रहा है? People are gonna spend on brands, they're gonna spend on clothes, लेकिन प्रोटीन का डब्बा महंगा है. तो वो प्रोटीन का एक डिस्कशन था. यू आर सेइंग वे इज आइसो इज गुड एंड वे इज नॉट गुड. लाइक आप कुछ उस See, दिन it's एक्सप्लेन कर रहे again one's choice. If you can afford isolate, nothing like it. The reason being isolate is lactose-free whey. जो whey होता है, whey is a derivative of milk, purest form of milk. When you extract lactose out of milk and furthermore process it, you get isolate protein, थे. राइट. which is very easy on your gut. I particularly like it because my gut is genetically sensitive. It's hereditary. My dad's gut is sensitive. His mother's gut is sensitive. So I tend to go easy on my gut. कि I should not feel bloated. I should not feel heavy. I should not feel uneasy. If I'm doing a protein shake post workout, तो आधा पौना 1 घंटे बाद maximum 1 घंटे बाद खाना तो खा पाऊँ. So when I used to take way back in the day, I used to feel extremely bloated, gassy, and I couldn't eat for 2 hours, 3 hours. So my personal take, because I am sensitive to dairy. I do not consume dairy. I do processed dairy. I do Greek yogurt. I do yogurt. I do cheese, butter, ghee. But I don't do milk. The reason being, again, I'm sensitive. So whey अगर मैं ले रहा हूँ तो it's the same funda. राइट. So that is why my gut goes for a toss. So I prefer taking something that is without lactose. So ISO is a better form of protein to take any day.
But if you're buying an isolate protein from any store, make sure you see the content ingredients. It should be primary source isolate, not secondary. Secondary अगर isolate है तो again it's a gimmick. Its primary source is whey or multivalent, so again it's not good quality protein. So if you're taking a protein from a store and buying it and using it, check the ingredient list. It has to be primary source isolate. That's सो that. लाइफस्टाइल चेंज, डाइट चेंज, फूड पैटर्न्स चेंज, ये सब होने के बाद एक बंदा एक लाइफ के एक प्रोग्रेस ग्राफ पे जब रन कर रहा है तो उसको ये होता है कि मैं मेरी लाइफ का डे बेस्ट डे बनाऊं। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आपकी अब तक जो भी लाइफ गई उसमें अगर आपको याद आए, अगर आप फ्लैशबैक में जाओ तो व्हाट इज़ योर बेस्ट डे, व्हाट वाज योर बेस्ट डे, वो बेस्ट डे कौन सा था और उस दिन क्या हुआ था? To be very honest, yeah, I've got a very hazy memory हम्म। because I haven't had a good time in a long time. हम्म। I haven't been in a good place in a long time. हम्म। Been battling through a very tough phase in my mental health. But one day that you say, maybe when I opened carved, कैसी थी फीलिंग? I felt reborn. The reason being that the fallout that happened in the old gym, I was down on ground, zero. Today I have everything, tomorrow I was nothing. From there, when I got back up and I went through that whole journey with my wife and we pushed each other कि नहीं करना है, देखते हैं। मैंने दूसरे जिम में मेंबरशिप भी लिया, मैंने वहाँ जाके बॉडी बनाया 3 महीना, मैंने जिम भी बनाया. My dad has supported me extensively in this whole particular scenario and all my life with my work. But उसके बाद जब खोला and when I saw approximately 90 to 100 members on the first day, that was the best feeling. I was like, dude, नहीं अपने करा है कुछ लाइफ में, क्या है इतने लोग पहले दिन पे आए. So that was I think one of the most, I can't say happiest but very satisfactory. I slept really well. I went home like नहीं यार आज मजा आ गया. पहला ओपनिंग है जब आपने करा है, अपने जीवन में कुछ काम किया है, कितने लोग इज्जत करते हैं, प्यार करते हैं. और वो पहले दिन पे 100 मेंबर आना, somebody who owns a gym. Thank you sir. Gift from Click. So guys, it's Click Coffee. And when you want Click in your life, you can go check this out. और ये पेड प्रमोशन नहीं है, दिल से प्रमोशन है. So the question was कि वो फीलिंग हम जो बात कर रहे थे कि पहले दिन पे 90 से ज़्यादा लोग आए, काउट को ज्वाइन किया और एक वाइब सेट की, एंड दो फीलिंग दैट वाज इंटरनल. Yeah. तो मैं ऐसा समझूं कि लाइक लाइफ में कितनी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें आपको मिल जाए, आपको जो चाहिए वो मिल जाए, सोल सेटिस्फेक्शन तो जो आपके साथ खड़े हैं वो लोगों से ही आता है. Love and respect. And out of those 90 memberships, I would say 10 या 15 नहीं होंगी पहले दिन पे, but almost 80 of those were my old members who've kept that faith in me, who supported and who showed their love on day one. काफ़ी लोग अभी साथ नहीं है, काफ़ी नए लोग भी हैं साथ, but it's a journey. And I think my life journey has been very up and down, and that's what my tattoo defines. This particular line is a lifeline, which I call it a lifeline. That's how I designed it. If people can see, Yes, yes. because life is never gonna be like a straight arrow up, even if you want it. It's always gonna have its ups and downs, ups and downs, ups and downs. आपका बेस्ट मेमोरी टैटू को देख के कौन सा आ रहा है? When I got my brother's name done, that's right there, द नेम इज Praneeth. प्रणीत. Yeah. क्या बात है. So when I was getting my brother's name done, हम्म. तो टैटू आर्टिस्ट पूछता है किसका नाम है. I'm like मेरे बड़े भाई का. बोले आज की दुनिया में भाई भाई को मारा है. मैं नहीं, हम तो दो भाई एक दूसरे के लिए मर जाए ऐसे. सो लाइफ के जब अप डाउन आते हैं तो फैमिली का सपोर्ट कितना मैटर करता है और क्यों मैटर करता है? अप्स डाउन्स भी काफ़ी डिफर करते हैं चीज़ें. डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ अप्स एंड डाउन्स आर वी टॉकिंग अबाउट. वर्क रिलेटेड, पर्सनल लाइफ रिलेटेड, finances related. If it's work, if it's professional, family support is there 1,000%. But if it's personal, where family is disappointed with you, then you can't expect support. So that's a different battle. I fought both, so I'm aware. एंड क्या आया दोनों का रिजल्ट? Family is family, dude. I'm a family oriented guy. I love my parents. I love my family. I love my dogs.
I recently lost my beautiful pup, which I haven't put down on social media. A lot of people would be knowing. Through thick and thin, मतलब भाई कोई खड़ा नहीं रहेगा दुनिया में. I think how social I am or how many people I know around me, I can barely count a few on my fingertips जो शायद मेरे खराब टाइम में खड़े हैं. जब वो सितारा वापस चमकता है ना, when you're out in the open, when you're out of your downer phase, everybody comes and enjoys the perks of your hard work. They want to stay connected to you. They want to come be seen with you. They want to enjoy the perks of being around with you. So वो तो है. But family is consistent. They stay consistent. Ups and downs again family में भी होते हैं. But in the end, blood is blood, family is family. They always stand by. And they should. And you should for them as well. That's the only thing that should matter to you in life. तो वो जो दूसरा क्वेश्चन मेरा था, वो क्वेश्चन ये है कि अगर आपने आपकी लाइफ का मोस्ट सेटिस्फैक्टरी डे जी लिया है, अगर आपको अभी एक डे इमेजिन करना हो कि लाइक अभी आगे की लाइफ में एक ऐसा दिन आपको बनाना है जिस दिन पे आप ये बात को याद रखोगे कि हाँ, दिस वाज माय गोल, कि ये मुझे अचीव करना था. See, the good part about me is I have a blueprint of my life, which is crystal clear. People who know me well, and now that I'm addressing to a lot of people out there, I don't get confused in things. अगर मुझे एक पर्टिकुलर चीज़ करनी है तो मैं उसके ऊपर अपना होमवर्क R&D करने के बाद ही वो चीज़ अपने मुंह से बोलता हूँ कि नहीं मुझे ये करना है. राइट. आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट. अगर मुझे दीवार ऐसी चाहिए तो वैसी ही बनेगी. अगर मुझे कैफ़े खोलना है तो मैं खोलूँगा. And I have been able to, I consider myself very lucky with the support of my family again, where I've achieved things which I've dreamt of being a kid. So the perspective was to open a restaurant, which I have now. That was like a childhood dream. Before you come down how Click happened. But yeah, it was a childhood dream that I wanted. I always wanted a cafe or a restaurant of my own. Gym came when I started training, when I met my guru. And this stuck as a passion and it became my life. Can you fitness, yeah. Gym to gym. तब वो ड्रीम आया कि नहीं मेरे को खुद का जिम खोलना है, तो वो भी किया, वो भी हो गया. Got into clothing. I enjoy wearing clothes. I feel I've got a bit of creativity in me. I'm not an artist or anything. I'm an artist definitely for my own self. I sculpt myself. But yeah, so I got an artistic feel and I tried to design a few things and I launched my clothing brand. वो भी हो रहा है, वो भी चालू है. You asking for the blueprint in the future? What राइट. is my happy day? दैट वन डे That जब one आप day. ये कन्वर्सेशन को रिकॉल करोगे. So there are two different aspects of it. Call me bipolar maybe. No, just kidding. Hmm. Two aspects of it. First of all, मैं इतना दूर का सोचता ही नहीं हूँ भाई. मैं Okay. सोच ही नहीं सकता. I believe in living one day at a time. But I do not have that day that I am visualizing like लोगों के दिमाग में होता है, oh there's a good beach, और बीच पे घर है, वहाँ पे बीवी है, बच्चा है, माँ बाप है. I'm filmy, but I'm not that filmy. Yeah. There's no guarantee of life. लिव लाइक किंग साइज. Live life king size से भी ज़्यादा balance it all out. Do everything that makes you happy. अपना करो, जो खुश करता है तुमको वो चीज़ करो, जिससे खुशी मिलती है उससे बात करो. जो नहीं पसंद भाई, मुझे आप नहीं पसंद तो मुझसे बात मत करो. ऐसा मत कीजिए. नहीं नहीं, अरे आप बहुत प्यारे हो यार. नहीं नहीं नहीं, I'm kidding. But just a thought. I'm very blunt with my things and it's very evident. I can't fake. मतलब मुझे पसंद नहीं है तो शक्ल पे दिख जाएगा, ऐसे 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 चेहरा घूमेगा, लाइक हो गया चलो. तो ये जो पर्टिकुलर पॉडकास्ट है ना, इसका पर्पस ये था कि हर किसी की ना दो कहानी होती है, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल. आई जस्ट वॉन्ट टू बिकम दैट ब्रिज कि वो इंटरनल चेंज क्या हुआ जिसकी वजह से उनकी एक्सटर्नल लाइफ में ये मैजिक शुरू हुआ. जैसे आपने क्लिक शुरू किया, तो क्लिक इज़ अ सक्सेस. लाइक देयर इज़ अ टॉक इन मार्केट कि क्लिक इसलिए बेस्ट है, क्लिक इसलिए बेस्ट है. बट मुझे ये जानना है कि आप क्लिक को लेके क्या विजन करते हो. So as I said in between, it was a childhood dream to have a restaurant of my own or a cafe of my own. How I envision Click further, I see it as a global success. I'm aggressively working on it. Me and Shivam, my partner, my younger brother, we are working on it. We're coming up with a second outlet called Ink by Click. It's located in Ahmedabad, Sheelach, and it's a far more different project than this. It has 3 pickleball courts, 2 paddleball courts, again, incorporating a little bit of sports person in me with the project. So, what I particularly feel within 8 months, next month I'll be launching Ink. So, 9 महीने के अंदर 2 आउटलेट तो मैंने लॉन्च किए, वो भी big size outlets. I'm not talking small size. This one is around 4,500 square yard.
of space. So it's huge. And how I envision is that I want to reach out to people, fill in that market gap. When I started Click, I tried to fill that market gap only by putting in things that I personally like, and that's my forte. That's how I've been with all my projects. कार्ड भी वैसे शुरू हुआ था कि मुझे एक पर्टिकुलर लाइट्स पसंद थी, मुझे साउंड पसंद है, मुझे डंबल स्टेनलेस स्टील चाहिए, टॉप ऑफ द लाइन इक्विपमेंट चाहिए, एक वाइब चाहिए. सो वो मैंने खुद को जो पसंद है वही डाला, तो वो लोगों को अच्छा लगा. दैट्स हाउ वी बिल्ड अ कम्युनिटी ना. Exactly. हमें जो Same पसंद is है with वो Click. वही होंगे Same is लोग. with Click. You enter the space, it's out open, putting in things. So what I want to do in the coming 1 year, I'm trying. I cannot put down the numbers कि मैं कितने outlet खोलूंगा, but I want to reach. I want to reach places, and I work for appreciation and money. Two things. आई डोंट वांट, दो में से एक भी चीज नहीं है तो मैं काम नहीं कर सकता. अगर सिर्फ अप्रिसिएशन है तो भी मतलब नहीं है भाई, सिर्फ मनी है तो और भी. सिर्फ पैसे है और बोल रहे हैं कि भाई ये तो बेकार है, लेकिन 50-100 फ्रेंचाइजी कर दी तो मतलब नहीं है यार. और पैसे तो वही है कि वो बचपन से देखे, तो मनी डजंट काउंट. एग्जैक्टली. काउंट तो वो होता है एंड कि क्या इम्पैक्ट दे रहे हैं हम मनी का सोसाइटी भी में. फनी पार्ट क्या है, बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून, आई वेयर अ रोलेक्स, आई वेयर डायमंड्स, आई ड्राइव अ फैंसी कार. But apart from that, okay, it might sound really funny. Yeah, those are very luxurious things that I have. Car I got it myself. ये मेरे डैड ने दिया, ये मेरे मॉम ने दिया. But I live a very healthy lifestyle, very beautiful lifestyle, very luxurious. I can't say luxurious, but good lifestyle. But funny thing is, I live on a pocket money. मीन्स Means I live on a pocket money. योर एवरी मनी इज इनटू बिजनेस. No, my savings are done by my father because I'm not good at money management. So I am that one person. अगर आप मुझे 1 करोड़ रुपए अभी दे रहे हो 24 घंटे है, तो मैं 5 घंटे में तो आपको खत्म करके दे दूंगा 1 करोड़ रुपए. एंड आई एम अ बिग बिलीवर where I deflect with my father's thought process. My father believes you earn 100 rupees, same 95, spend 5. Spend 5, I have a good, comfortable, healthy life. Simple living, I thinking. I don't believe in simple living. Why am I working? Why am I putting in efforts? Why did you work for so many years? Simple living? तो फिर तो सारे के सारे एक घर में रहते हैं, सब अलग घर में क्यों रहते हैं? आई थिंकिंग ओके, आई एम अ बिग बिलीवर के 100 रुपए कमाए, स्पेंड 20, सेव 80. सेव ऐसा नहीं है कि बिल्कुल है सब उड़ा दो, सेव 80, बट स्पेंड 20. सो फ्रॉम सिंपल लिविंग यू हैव लग्जरियस लिविंग राइट. and you're saving. It's an upgrade. Why do you earn? Why do you work? My particular theory of working is to upgrade your lifestyle. सो अगर कोई कुछ भी अचीव कर सकता है, अगर वो ठान ले तो मैंने कहीं पे ये सुना था कि आपको वो इंसान बनना पड़ता है जो आप बनना चाहते हो. लाइक फॉर एग्जांपल, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे आपकी लाइफ में मिले होंगे जो आपकी तरह की लाइफ जीना चाहते हैं, इन टर्म्स ऑफ मटेरियलिस्टिक वे, इन टर्म्स ऑफ एनी अदर वे. बट द क्वेश्चन इज कि ये लाइफ जीने के व्हाट आर द डाउन साइड. There are a lot of downsides, bro. Because, as I said, people see the good part. अभी तक मैंने भी बताया है कि ओके मैं रोलेक्स पहनता हूँ, या मैं गुची के चप्पल पहनता हूँ, या मैं डायमंड पहनता हूँ. Nobody sees the back struggles of it. इसमें से कितनी चीज़ें मैंने खुद खरीदी है, तो वो लाते लाते बैंड बज गई. सेकेंडली, मैनेजिंग योर फंड्स, अर्निंग दैट, लिविंग थ्रू, बिकॉज एक चीज़ आपको मिल चुकी है, अब उसकी आदत है आपको, अब उसको वही चीज़ मेंटेन करने के लिए आप कितनी मेहनत कर रहे हो. एज आई सेड, आई लिव ऑन अ पॉकेट मनी, बट आई अर्न वे मोर देन दैट. सो आई डोंट इवन नो हाउ मच आई अर्न. मेरा जितना आता है क्योंकि आई एम बैड एट इट. बट या स्ट्रगल्स है ब्रो, कि वहाँ तक पहुँचने के लिए या अपने आप को उतना काबिल बनाने के लिए क्या चीज़ है. एटलीस्ट आई एम प्राउड दैट माई आइडेंटिटी इज ऑफ माई ओन. आई डिड नॉट मेक माई आइडेंटिटी by showing off my cars or my lifestyle. You'll never see my lifestyle, or you never see my cars, you'll never see me blowing money, because I don't anyways. I'm very simple that way. 3-4 अलग कलर के ब्लैक ग्रे वाइट शर्ट है अपने पास भाई, 4-5 डेनिम में, चप्पल है, फटे हुए जूते हैं, kind of that. So I like to spend on things that I'm fond of. Maybe glasses, I've got 100 pair of that, I collect them. So बहुत सारे फैक्टर्स इसमें भी अलाइन होते हैं कि स्ट्रगल्स बहुत चीज़ों के होते हैं. आप कहाँ पे, लोगों को वही लगता है, पीछे का स्ट्रगल दिखते नहीं है कि भाई कहाँ पे कितना कॉस्ट कटिंग भी करता होगा ये आदमी, या कहाँ पे ये ज़्यादा स्पेंड करता होगा, या लोगों को एक
लग्जरियस साइड दिखती है, बट राइट। इट्स नॉट द रियलिटी। रियलिटी इज फार मोर डिफरेंट ब्रो। फिटनेस एक अपने आप में एक जर्नी है, फिटनेस अपने आप में एक दुनिया है। व्हेन यू आर हैंडलिंग योर बॉडी, आप एक डिसिप्लिन के साथ, एक रूटीन के साथ जाते हो, तो माइंडसेट मैटर करता है। माइंड को सेट करना पड़ता है एक डायरेक्शन में जाने के लिए। तो पहला वो कितना डिफिकल्ट है? Extremely difficult. My Guruji, may his soul rest in peace. I give him all the credit for the man I am today. You've seen Dangal? हम्म। Mahavir Singh Fogart. That was my Guru Kiran Davi. Same way. बहुत मार पड़ा है. So when I started my journey, my career, I went to the अखाड़ा because I wanted to learn. मतलब वो लग गया था कि नहीं बॉडी तो बनाना है. And a lot of people think I was born like this. No, I was skinny. आपको भी शायद नहीं पता होगा. I was 52 kilos, 5 feet 11 when I started. I'm known for my transformations, and the heaviest I've been when I was powerlifting because the purpose was to lift more and get big. And I had this disorder back in the day in mentally called bigorexia. So bigorexia is something where I was huge. Okay, I think one of the biggest guys in the city. Okay, the heaviest I've been is 127 kilos. ट्रिपल 50 to 127 लाइक। 127 एंड फैट भी बहुत था बॉडी में, मसल भी इतना, आई एम सो लाइक 21 एंड हाफ, बट तभी मुझे लगता है थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और, सो दैट्स अ डिसऑर्डर. फिर जाके मुझे द फर्स्ट टाइम आई मेट जॉन अब्राहम, आई थिंक दैट वाज द ब्रेक पॉइंट व्हेन आई सॉ हिम. I was again 117 kilos. I was way bigger than him, but when I saw him, he came for a movie promotion and we met. We spent good time. The most beautiful body I've seen in that particular time. After that, I sculpted myself. He was around 95 kilos. John is, I think, same height. So वहाँ से I got that कि नहीं यार, मतलब this is appealing. You know, abs. You need abs in your body. You need to have a hard, beautiful looking, dry, good physique, chiseled face. 117 kilo pe I look like a teddy bear, even though I'm big. So that time I realized कि no, I have to sculpt it that way. So this whole journey of discipline, I realized one thing. I was a vegetarian, then I shifted on to eating meat, eggs, because my Guruji told me one thing. And मैं कोई धर्म वाला हूँ नहीं. I'm a atheist. I'm a karma believer. I don't preach God. I have nothing against it. भगवान है भाई, सब जो मानते हैं, पर मैं कर्मा बिलीवर हूँ. सो उन्होंने मुझे वही बोला कि भाई तू यू चूज योर गॉड एंड माई गॉड इज लोहा, आयरन फॉर मी. आयरन इज माई गॉड एंड माई गुरु टॉट के टू बिल्ड अ बॉडी, दिस इज माई टेम्पल. और टेम्पल के अंदर भाई अच्छी चीज़ें करनी चाहिए. सो वहाँ से मैं सीख के आई स्टार्टेड ईटिंग, आई स्टार्टेड ट्रेनिंग, and that's how I built my disciplinary lifestyle. But I would like to portray this point about mental health before you even bring it up. That काफ़ी चीज़ें, so you can't be consistent with everything. I was consistent for 15 years. I never miss my workout. Even if I'm traveling, I work out. I carry my meals. People who know me very well, they know I still have my meals in my bag. So I carry my meals wherever I go. Now I have my cafe, so my meals are prepared there. Most of the eggs and stuff because we serve it there. So if I believe that if a person like me who's been disciplined for 15 years, like apt on meals, apt on, मतलब मैं घड़ी के कांटे जैसा था भाई. मतलब मैं अगर उठ के, मतलब लोग मुझे जानते हैं कि भाई इसको इतने बजे फ़ोन करेंगे, इतने बजे ही उठा होगा, या ये इतने बजे सो गया होगा, या इतने बजे खा रहा होगा. दैट्स हाउ एप्ट आई वॉज, एंड एवरीबडी न्यू कि भाई इसका गाड़ी में इसका खाना होगा ही होगा, बिकॉज वो एक सिस्टम से, एक डिसिप्लिन से हमेशा फॉलो किया. अब वो चीज़ अगर मेरी डिफ्लेक्ट हो सकती है 15 साल बाद बिकॉज ऑफ डिप्रेशन एंड मेंटल हेल्थ एंड पर्सनल प्रॉब्लम्स, सो एक नॉर्मल आदमी के लिए तो बहुत ईजी है वो. बट आई हैड टू ऑप्शंस टू चूज इन लाइफ एंड अंडरस्टैंड दैट I am not a normal person like every. I'm an athlete, and I cannot live and eat and breathe and drink like a normal person. I have responsibilities on my shoulders as a public figure. I motivate people for fitness. I myself need motivation right now, and I started that journey again. And yeah, it has been a little difficult in the last few days to get back on that diet because I've been eating. And I opened a cafe. Being a foodie, तो मैंने बहुत खाया है, सब खाया है. सो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, पेट भी आया उसमें बाहर. अब ये एब्स दिखेंगे थोड़े टाइम में,
But yeah, so it's been a little difficult for me. But yeah, it's all in the mind, and it's about how you take things. Discipline कैसी चीज, अगर इसको लाइफस्टाइल की तरह लो तो डिसिप्लिन वाली चीज ही नहीं है ब्रो. लोगों को मैं समझाता हूँ, अगर आप डाइट कर रहे हो तो डाइट वाला वर्ड है ना, वो डराता है. वो वर्ड डरावना है. तो तुम डाइट सोचोगे तो क्या, हाँ भाई उबले हुए चने या सैलड खाने दिन भर, चावल नहीं खाना, तो नहीं भाई. That's not what you call dieting, or So, that's not what you call app nutrition. can I decode diet as discipline in extreme time? That's a good full form that you've created. Yeah, We that's can say pretty no, well. हाँ. Yeah, you can put it like that. And it's a balance of your food and nutrition. And क्या करना है, मतलब दिन का भाई 1 घंटा तुमको एक फिजिकल एक्टिविटी करनी है. For youngsters below the age of 16, I would never suggest them to come and join a gym. It is good for them, कर सकते हैं. और ये सारे मिथ है कि भाई हाइट रुक जाएगी या बोन ग्रोथ नहीं होगा. भाई वो इट्स गोइंग टू रिलीज मोर ऑफ HGH इन योर बॉडी, इट्स गोइंग टू मेक यू ग्रो बेटर. बट यू प्ले अ स्पोर्ट, एनी स्पोर्ट यू लाइक, फिजिकल एक्टिविटी इज अ मस्ट. एंड एज यू एज तो फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है. और ऐसा नहीं है, मैं भी भाई आई एम ऑल्सो वर्किंग, आई एम डूइंग बिजनेस. ओके, इवन इफ आई डोंट ओन अ जिम, आई डू, बट इवन अगर मैं नहीं होता तो भी यार 1 घंटा निकालना तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है. मतलब अगर अगर आप बोल रहे हो कि भाई नहीं यार मैं तो दिन के 10 बार, मैं 12 घंटे काम कर रहा हूँ अभी भाई. एंड आई वर्क 7 days a week. 7वें दिन संडे मानो 12 घंटे नहीं तो 6 घंटे काम करता हूँ संडे को. बाकी मंडे टू सैटरडे तो 12 घंटे काम है. तो शायद मैं अगर 11 बजे सुबह उठ रहा हूँ, मैं 9 बजे उठ जाऊँ. 2 घंटे का कॉम्प्रोमाइज़ करना है तो तुम्हारा काम कर लोगे, तुम्हारा वर्कआउट भी हो गया और तुम्हारा सब सेटल है. सो इट्स अबाउट मैनेजिंग. अगर मैं आपको गुरुजी कहूँ, नहीं भाई, आप बहुत भारी नहीं शब्द है नहीं, मेरे जो लिए. मैं बात पे आगे आ रहा हूँ कि अगर मैं आपको गुरुजी कहूँ जी. और आप मुझे कोई एक टारगेट फेंक के मारो कि हाँ भाई, इफ़ यू थिंक तो ये तुम्हारा टारगेट है. आपको पता है करंटली फिजिकल कंडीशन तो मेरी इतनी अच्छी है नहीं, लेकिन अगर मुझे कुछ अचीव करना है, राइट, मेंटरिंग तो आपसे टाइम बाय टाइम मैं पूछता रहूँगा कि क्या सही जा रहा हूँ नहीं. बट ऐसा कोई एक टारगेट आप दो जो पॉडकास्ट में मेरे लिए भी एक पब्लिकली चैलेंज हो जाए और मैं भी उसको कुछ फॉलो कर पाऊँ. टू बी वेरी ऑनेस्ट, यू गिव मी अ टारगेट फॉर योर ओन सेल्फ. आई एम नोबडी टू गिव यू अ टारगेट. मेरे गुरु ने कभी टारगेट नहीं दिया था. मेरे गुरु ने एक ही चीज़ सिखाई, तू करता रह, तू करता रह, मैं कर रहा हूँ, करता रह. मुझे याद है, आई वुड आस्क हिम सेट चालू करने में, कितना काउंट सर, स्क्वाट करते हैं 100 किलो लगा दिया. अखाड़े में 100 किलो लगाओ. अखाड़े में कोई स्टैंड नहीं होता जो मॉडर्न जिम में होता है. अखाड़े का ना एक पुराना स्टैंड होता है जो मूवेबल होता है. सो जब मैं अखाड़े में करता था ट्रेनिंग, 100 kg स्क्वाट लगा दिया. अब पहले वेट हाथ में लेने के बाद सर को पूछो सर कितने रह पाए, चालू कर. हाँ, 5, 10, 12 हुए. अब वेट गिर गया अगर तो बहुत मार पड़ेगी. और वेट रैक भी नहीं है तो करोगे क्या. जब तक वो ना नहीं बोलेंगे यू हैव टू गो ऑन एंड ऑन, जब तक पैर करके कांप के तुम गिरे नहीं. एंड देन ही वुड कम ऑन द बैक, हेल्प यू विद 5 more counts, एंड देन ही वुड आस्क यू टू रैक. वो करने के बाद तो तुम गिर ही गए हो. सो द पॉइंट इज के गोल टारगेट वाला सीन अलग है. हाँ, गोल टारगेट लॉन्ग टर्म रखो. सब अभी आज की दुनिया में लाइक एवरीबडी इज लुकिंग एट नहीं, या 3 महीने में ये कर देना है. मैं बोल सकता हूँ 3 महीने में, क्योंकि भाई 15 साल मैंने ये घिसा है. आई नो द गेम, I know how my body functions. I know what to do. And again, I am of a very rigid mindset. अगर मुझे बंद करना है खाना तो बंद, मैं बंद कर दिया, नहीं खा रहा. I'm back on my meals. On the first day I was back on no salt, as in no extra added salt in my meals. Boiled chicken, boiled eggs, 20-25 egg whites a day, half a kg of chicken a day, half a kg of boiled rice a day. So I'm again back in that mindset कि I'm again eating for my body. 1 साल मैंने टेस्ट के लिए खाया ना. आई वॉज अ स्लेव ऑफ माई टंग. नाउ आई एम नॉट अगेन. आई वॉन्ट टू बिल्ड माई बॉडी अगेन. आई वॉन्ट टू बी रिप्ड. आई वॉन्ट माई वेन्स टू पॉप अगेन. सो इट्स सिंपल. सो यू चूज योर टारगेट. क्या आपको क्या करना है. एंड आई डोंट गो बाय द वेइंग स्केल, टू बी वेरी ऑनेस्ट. माई गुरु जी अगेन टॉट मी वन थिंग, ये बॉडी फैट कैलिबर टेस्ट या आप काफ़ी चीज़ें मॉनिटर करते हो. लुक योरसेल्फ इन द मिरर मैन. इफ यू कैन सी योर एब्स, ओल्ड स्कूल वे, आईने में देखना, वो काउंटर पे तो दिखा रहा है 20% बॉडी फैट. 7% आएगा ना तो काउंटर की जरूरत ही नहीं, वो आईने में दिखेगा. मैंने एक छोटा सा विजन रखा है, शायद इसको कट कर सकते हैं, पता नहीं. नहीं नहीं, इसको चालू रखेंगे हम, कट नहीं करेंगे. बोलो. विजन ऐसा था कि एक वाइट शर्ट,
हाथ में गिटार और पूरा पानी गिर रहा है ऊपर से और पूरी बॉडी ड्रिप्ड हो। मैंने उसका एआई से एक फोटो भी बना के रखा था। अरे वाह, लिनन का शर्ट पहनो और शर्ट हाँ खुला रहना चाहिए। हाँ, बस ये एक ऐसा विजन है। तो क्यों नहीं? तो होता खुद नहीं। को टारगेट दो। कब का दोगे? एंड नेवर डू अनरियल टारगेट्स बिकॉज टिल आई माई लास्ट आई सी बर्थडे। यू आर स्टिल in our field we call a very नाइफ। no, naive is not the word, a very raw, very fresh body. अगर आपके जैसा बॉडी मेरे हाथ में आएगा अभी, तो मैं इसके साथ बहुत अच्छे से खेल सकता हूँ। मतलब मैं उसको कैसे बनाना है, उसको कैसे ट्रेन करना है, यू कैन प्ले अराउंड बिकॉज इट्स वेरी रॉ। अब ये है, ये बहुत सीजन बॉडी है, बहुत तोड़ा हुआ है, दोनों शोल्डर टूटे हैं, बहुत इंजरीज है, एक मसल बिल्ड हो चुका है, तो एक उसका अलग निखर के एक रूप बाहर आ चुका है। सो अब आके मुझे पता है उसको कट करके वो वैसा ही दिखने वाला है, ये उससे थोड़ा बेटर दिखेगा। राइट। आपका पता ही नहीं अंदर से क्या निकलेगा। सो इट्स अ वेरी रॉ बॉडी, सो यू कैन स्कल्प्ट इट, यू कैन कार्व इट द वे यू वांट। सो यू डू अ रियलिस्टिक टारगेट, मे बी लेट्स से 6 months, 8 months, अ ईयर, गिव इट अ ईयर। ईयर। अगर 30 साल लगे हैं भाई इसको बिगाड़ने में, 1 साल बनाएंगे। 1 साल 2 साल, दैट्स व्हाट आई टेल माय क्लाइंट्स। यार सब आएंगे बोले बस 3 महीने में शादी है, 20 किलो उतारना है। भाई चढ़ाने में कितना लगाया तुमने? 30 साल। गिव इट एटलीस्ट अ ईयर और टू, एंड इट्स अ स्लो प्रोसेस टू बी वेरी ऑनेस्ट। फिटनेस लोग बोर हो जाते हैं, मोटिवेशन चले जाता है, रीजन बीइंग इट्स अ स्लो प्रोसेस। इफ इट वाज दैट इजी भाई, तो मेरे जैसा बॉडी या बहुत सारे लोग हैं जिनका बॉडी है, तो वैसा बॉडी लेके हर आदमी तुमको बाचा रास्ते पे दिखते हैं ना। 50 लोग दिखते हैं जिनके एब्स या जिनके 20 इंच के बाइसेप, क्यों नहीं है? इट्स अ डिफिकल्ट जॉब, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट, एंड बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस इज अ स्पोर्ट। द स्पोर्ट स्टार्ट्स आफ्टर यू गेट आउट ऑफ द जिम। द स्पोर्ट स्टार्ट्स व्हाट यू ईट, हाउ मच यू स्लीप, व्हाट सप्लीमेंट्स यू टेक, रिकवरी के लिए क्या क्या कर रहे हो, दैट्स व्हेन द स्पोर्ट स्टार्ट्स. So it is way more difficult than any other sport you play because you don't carry a kit or go to a court or a ground. ये तो ग्राउंड के बाद ही गेम चालू होता है। सारे स्पोर्ट में भी वही होता है, लेकिन वो स्पोर्ट फिर भी तुम फिजिकली वहाँ पे एक टैलेंट से या एक हार्डवर्क से परफॉर्म कर सकते हो। ये वाले स्पोर्ट के अंदर तुम जितना टैलेंट दिखा लो जिम में, तुम जितना हार्डवर्क दिखा लो, खाना सही नहीं रहा, वो दिखेगा ही नहीं। That's how this is difficult. Might be you coming down, talk about fitness in the gym also, जो आग मेरे में थी वो दिखती नहीं है अब कहीं। तो ले आते वापस। There is no fire. Dude, to be very honest, जिस तरह से मैं तैयार हूँ, मुझे कोई तैयार करने मिले ना भाई, तो मेरे को मजा आ जाए। मतलब मैं I would train somebody to become so well. But are you willing to do it? करते Training हैं। with me, so I'll tell you, training with my coach was difficult. Training with me is 10 times more difficult. I'm not kidding. जो आपको ये इतना प्यारा दिख रहा है ना bro, I am complete opposite dude. None of my friends could ever treat. Ask any of my friends, my family members, nobody. वो एक दिन ट्रेनिंग करेंगे, या तो फिर हमारा संबंध खत्म हो जाएगा, या तो फिर वो कभी मेरे पास आएगा नहीं। माई फ्रेंड्स दे डोंट इवन टॉक टू मी इन द जिम। आप जिसको मिले थे उस दिन कैफे पे, शौमित सर, इज माय लिटिल ब्रदर, आप उसको पूछना, वो कभी भी आपको बोलेगा कि नहीं जिम पे उससे बात ही नहीं करता मैं। वो हाय बोलेगा हाय, बस उसके बाद बात ही नहीं करेगा। उसको पता ही है कि कभी भी इसका दिमाग खत्म हुआ है, कुछ भी बोलेगा या कुछ भी करेगा, निकल। वर्कआउट कर रहे हैं, आई हैव लिटरली हैड पीपल क्राइंग ऑन द फ्लोर, मेरे अंडर कर रहे हैं, इतना होता नहीं है, तेरे से 20 पुशअप नहीं होता है, तो क्या मेरे साथ ट्रेनिंग कर, निकल। एंड इट्स जस्ट इट इज हाउ आई हैव लर्न थिंग्स, सो वो ऑटोमेटिकली निकल जाता है, और वो जानबूझ के मैं नहीं करता हूँ। एंड पीपल व्हेन आई अप्रिशिएट देम, वो बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि मेरे पास से अप्रिसिएशन निकालना डिफिकल्ट है, क्योंकि मैंने खुद का एक बार स्टैंडर्ड बहुत हाई ऊंचा कर सेट दिया किया है हुआ ना। है, और मैंने स्टैंडर्ड, और मैंने मेरे गुरुजी के पास, क्योंकि मैं जब अपने गुरुजी से अपना अप्रिसिएशन ले रहा था ना, मैं 18 बार स्टेट चैंपियन बना हूँ भाई। फर्स्ट कंपटीशन से लास्ट तक मैं गोल्ड जीता हूँ, आई नेवर केम सेकंड। मैंने पहली बार स्टेट रिकॉर्ड तोड़ा था, आई हैड अ टॉर्न ट्राइसेप आफ्टर द इवेंट, व्हेन आई ब्रोक द रिकॉर्ड, मैं ऐसे करके उठा हूँ, क्योंकि ट्राइसेप टेयर हो चुका था उसके पहले। सो माई गुरुजी इज लाइक, तो कोई भी और आदमी आज की दुनिया में होता, नो 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 नो, लेट्स कॉल द एम्बुलेंस, लेट्स टेक द डॉक्टर। किरण सर मुझे पूछ रहे हैं शू कर कुछ, मैंने बोला क्या करना है मतलब? बोले कि तूने 140 की बेंच मारी है, तेरा ट्राइसेप तो टेयर हो गया है। 142.5 का रिकॉर्ड, 140 का रिकॉर्ड तू मैच कर चुका है, एक और अटेम्प्ट बाकी है तेरी। मैंने बोला लड़ लेते, रेस्ट तो लेना ही है, टेयर तो हो ही गया। माइनर टेयर था, बट minor tear also screws you up, it's very painful.
सो ही गॉट अ बॉटल ऑफ रेली स्प्रे और मेरे हाथ पे एक बोतल खाली कर दी भाई. सो इतना जब रेली स्प्रे डालो तो हाथ सुन हो जाता. मैंने रिकॉर्ड तोड़ा. सर्टिफिकेट 20 साल पुराना रिकॉर्ड था. तोड़ा, सर्टिफिकेट लिया गया, 3 महीना आराम, क्योंकि टेयर हो गया था. सो आई हैव अ लॉट ऑफ दी स्टोरीज हाउ आई बीन ट्रेन्ड. आई वाज एडमिटेड फॉर डेंगू इन अ हॉस्पिटल. ठीक है, डेंगू था मुझे. हॉस्पिटल से डिस्चार्ज के तीसरे दिन स्टेट चैंपियनशिप में करंट डिफेंडिंग चैंपियन. थर्ड डे डिस्चार्ज के तीसरे दिन मेरे घर वाले दे मेड माई लाइफ. तू पागल है, क्योंकि यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ ऑफ, क्योंकि तुम यू जस्ट रिकवर्ड फ्रॉम सच अ बैड डिजीज, सॉरी इन्फेक्शन, सो यू आर वीक. लेकिन नहीं, जाना तो पड़ेगा. डिफेंडिंग चैंपियन, जैकेट वैकेट पहना, पहुंच गया, जीता वो भी. वहां पे भी जीत के आया, जीत के आया वापस 15-20 दिन वापस फेल होके गिरे. बट दैट वाज अ माइंडसेट. मतलब कभी, एंड आई डोंट encourage people doing it, but yeah, bodybuilders and us, we are little mad people. कुछ जुनून होना चाहिए. नहीं, पागल लोग हैं हम, पागल लोग हैं भाई. सारी भाई पहलवानों की कम्युनिटी के लिए एंड ऑल द बॉडी बिल्डर एंड फिटनेस पीपल, वी आर मैड पीपल. दैट्स व्हाई यू कम डाउन टू अ मिनिमम ऑफ 3% ऑफ पीपल इन द होल वर्ल्ड. एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, मेरा मोनांग से भी बहुत डिस्कशन होता है कि थोड़ी जनूनियत होनी चाहिए. आप बिजनेस बना रहे हो तो बिजनेस अगर आप सेफ सेफ खेलोगे तो बड़ा ही नहीं होगा. जनूनियत होगी तभी जाके आप Absolutely, उसको बड़ा करोगे ना. absolutely. मैडनेस चाहिए वो. But yeah, that's the thing, everybody does not have that. हम्म. तो दो क्वेश्चन मेरे माइंड में. पहला सबसे एक्टिव क्वेश्चन है, इट्स अबाउट मेंटल हेल्थ. लाइक फिजिकल हेल्थ पे यू आर फोकसिंग सो मच. लाइक जैसे आपने कहा कि लास्ट 1 साल आपका रफ एंड टफ गया, Very नाउ यू आर rough. बाउंसिंग बैक अगेन. तो वो माइंडसेट, जो मेंटल हेल्थ है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, और कैसे एनीवन कैन सस्टेन एंड बाउंस बैक, क्योंकि सबका डाउनफॉल आएगा. See, varies from person to person. Struggle सबका अलग होता है bro. We think our struggle is the worst, पर maybe आपसे ज़्यादा किसी और का है. सबका एक अलग होता है और एक स्ट्रगल का लेवल होता है. यू कैन नेवर डिटरमाइन. मेरे हिसाब से मेरा रेजिस्टेंस, मेरा सहन करने की शक्ति ज़्यादा है, तो मैं ज़्यादा स्ट्रगल कर पाऊंगा. राइट. किसी इंसान का फाइनेंशियल स्ट्रगल होता है, कोई इंसान का मोटापे से भी होता है कि यार मारू वजन बढ़ा रहे, लेकिन मेरा वजन ज़्यादा है, ज़्यादा पेट है. मेरे हिसाब से, मेरे नज़रिए से देखना है तो क्या इतने में रो रहा है, बट उसके लिए वो एक स्ट्रगल है. राइट. Bounce back is in your hands. There's always a easy way out. There's a difficult way out. I chose the easy way out. It got me more depressed. Me personally. Because I went out of shape. For me, my body is my first love. मैंने बहुत मेहनत से बनाया है. मैंने बहुत साल दिए. So for me to bounce back, the only motivation was to look at myself in the mirror and understand कि भाई तू क्या कर रहा है? What the fuck are you up to? You need to get back, dude. This is not you. So that was my mindset. And yes, during my most depressive state, when you talk about professional work and growth, I wouldn't want to mention a lot of details in it, but the worst and the lowest I've been, I created Click. I started building Click when I was in my worst state. खत्म था मैं, तब मैंने क्लिक बनाना शुरू किया. People who can maybe just look at the face, they'll understand कि नहीं यार वो हंस रहा है, लेकिन there's something going through. He's going through a lot, and it's a fact. We have so many examples of so many celebrities in the world. Robin Williams, we have Chester from Linkin Park. Everybody was smiling, dude. Amy Winehouse. Next day they were gone. So depression is real, mental health is real, and it's up to you. And see, you indulge into alcohol, you indulge into substances, you indulge into fitness. It's going to give you the same feel, क्योंकि सब में सेरोटोनिन और डोपामिन रिलीज हो रहा है भाई. तो तुम ये डोपामिन चूज करो या ये करो. सो तुम ये चूज कर रहे हो तो उससे तुम्हारा बेनिफिट हो रहा है. मैंने भाई दारू भी पिया, मैं वर्कआउट भी कर रहा हूँ, और वो करने के बाद मैं वो डोपामिन का टेम्पररी एंजॉयमेंट लेके फिर मैं और अंदर गया हूँ और डिप्रेशन में. तो वो नहीं चाहिए अपने को, ये चाहिए, ये Upward करते रहो spiral ना. पे. हाँ, तो ये होगा तो अगले दिन और कि नहीं यार, आज और तोड़ो, आज और तोड़ो, आज और तोड़ो. That's the, and because that has been me, that is my identity. So I have to go on that path only, and that is my path to success. Good body, good mind, good soul, dude, you're unstoppable. सो जितना भी पॉडकास्ट हमने ये डिस्कशन किया, इनिशियली आई स्टार्टेड
आई स्टार्टेड फीलिंग कि आई एम सिटिंग विद समवन जिन्होंने इतनी अचीवमेंट की है, इतने बिजनेस डेवलप किए हैं, ये प्रोसेस से गए। लेकिन जैसे जैसे मैं आपको जानने लगा ना, आई फील दैट आई एम सीइंग द बिगर ब्रदर इन यू। कि लाइक जो भी ये बंदा कोई देखेगा, दे फील कि यार अगर मैं कहीं पे रुक रहा हूँ ना, शायद इनकी एक एडवाइस, क्योंकि पूरा शाइनी नहीं है, देर आर अप्स एंड डाउन्स, बट डाउन से जो अप आया ना, वी फील के लाइक इन्होंने भी ये फेस किया होगा, इनसे एक बार पूछते हैं, शायद इनसे कुछ हमें सॉल्यूशन मिल जाए। When I talk to people, no, again, I wouldn't want to get into my personal details because they are my own. And I'm a big believer, जो मेरी खुद की चीज़ है वो मेरी है भाई. It's not just ups and downs. I have struggled very much in life through situations, friendships, relationship, expectations, disappointments from loved ones, hardships, family problems, legal issues because of the nature I have, short tempered. I've been through legal issues because of that. अब ये सारी चीज़ में मैं लोगों को यही बोलता हूँ कि भाई आप भले 60 साल के हो ना, मेरा एक्सपीरियंस 62 का है। क्योंकि लोग जो 60 साल की उम्र तक भी जो चीज़ें नहीं देखते मैं वो सब देख चुका हूँ। And by that I am not saying कि seeing a loved one die and all of that is तो there. But so many things I can't say on camera which I've seen, which I've experienced, which I've gone through that I would wish nobody would in their life. And I have seen all that, I've battled through all that. I'm still fighting battles. But there are only two options, either fucking die. If you're weak, die. If you're not weak, Have a तो war भाई with लड़ना ही it. पड़ेगा. Have a war और with जगह नहीं है तुम्हारे पास. Keep fighting. Keep doing what you do best. Nail yourself. And there's one life, man. Live it the way you want and make an impact. मेरा एटलीस्ट इतना है कि भाई मैं कल मरा ना अगर, तो लोग याद तो करेंगे कौन था. कोई तो था. I don't want to be that random chap के भी पता भी नहीं है कोई मर गया. He's a nobody. I'm a somebody. And I want to be something more. So yeah, that's it. विद दैट इम्पैक्ट आई थिंक दिस इज़ अ हाई नोट कि हम इसको यहाँ पे दी एंड करें। लेकिन मैं एक चीज़ के साथ इसको रीओपन करना चाहूँगा कि अगले साल जब हम आएंगे तो 18 बार स्टेट चैंपियन के साथ नहीं, हम एक ऐसे बंदे के साथ बैठेंगे जिन्होंने पैन इंडिया में अपनी ब्रांड को पहुंचा दिया है एक क्लिक के साथ, और उन्होंने अपनी डेस्टिनी को जैसे कार्व किया है वैसे अपने बिजनेस को भी कार्व करेंगे। एंड आई विल बी हैप्पी, शायद आप भी हैप्पी हो जब हम बैठेंगे इनके साथ वापस। आई माइट बी इन द शेप that I am proud of. There's no might, brother. There will be, definitely. I will be in I the will be in shape is that the way shape. to do it. बस तो फिर I will be in that shape और हम साथ में ही रॉक करेंगे, एक देसाई दूसरा देसाई साथ में मिलके No, सबको we दिखाएंगे। will, man. And like-minded people, we all grow together. And that's 100%. that's और what it is. एक दूसरे को धक्का मार के आगे नहीं पहुंचाएंगे तो क्या करेंगे? तो Support. तो एक Support is क्लोजर के very साथ एक अगर लाइन बोलनी हो कि लाइक आपकी पूरी लाइफ की जर्नी को अगर मुझे किसी एक डायलॉग में, किसी एक लाइन में या किसी एक वर्ड में सम अप करना हो तो वो क्या हो सकता है? आप कैमरे में देख के बोल सकते हैं। Wow. Line dialogue तो पता नहीं भाई. Yeah, I can define myself in a way saying, it is not what you see. I am not bad as you think. I am not good as you think. But at least I'm a good person. Clean heart, good soul. And yeah, I'm a warrior. If I die, I die. If I don't, I'm gonna go up. I'm gonna reach heights. Nothing is stopping me. तो अब काम करने का शुरू हो चुका है वक्त, काम वॉर तो शुरू भाई हो जोर चुका है, है, चलो लग लायन जाओ केज भाई. से आ चुका है बाहर, तो करते हैं शुरू। We are on एंड आई time. विल कैच यू सून। इट Cheers, वाज अ फन guys. नाइट विद देव देसाई। Thank you, brother. Thank you तो so कैसा much लगा for having me. experience? I enjoyed it, and yeah, I'm just trying to bring down a value to people that at least if they get motivated somehow, and if I have been able to spread a good message, a positive message to people, and yeah, we expect the best out of people. We expect the best out of our lives, and it was a beautiful podcast. I really enjoyed doing it, and I had a very positive feeling with you, brother. Cheers to it, and all the very best for your show. Keep it going, bro. Cheers 100% to that. टुगेदर। अरे बिल्कुल. डन। Cheers, man.